Thank you very much for your kind prayers. आप सबकी दया से भरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। God is so good. God is guiding us, and we have come up to the book of Acts, and we have completed Apostle Paul's first missionary journey in our previous Bible study. पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने यहाँ तक हमारी सहायता किया और प्रेरितों के काम के अध्ययन में हमें लेके आया है। और विशेष पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के विषय में हमने अपना अध्ययन पूरा कर लिया था। God willing, today we are going to study Apostle Paul's second missionary journey. और प्रभु ने चाहा तो आज हम पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। Let me also look to the Lord in prayer before we begin our Bible study. आइए अपना बाइबल अध्ययन करने से पहले आपके साथ मैं भी परमेश्वर की ओर प्रार्थना के साथ देख पाऊं। Gracious Lord, we thank you for the wonderful opportunity you have given us to come to your feet. अनुग्रहकारी पिता, आपको धन्यवाद कि आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें। When we think of your awesome holiness, we tremble in our shoes to come to your feet. And so we beg of you to please cleanse us with your precious blood and make us clean. और महान और अति पवित्र परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और बड़े भय के साथ आते हैं कि आप हमें पवित्र और शुद्ध करें। When we look into ourselves, we understand how unworthy we are, how unfaithful we are, how many a time we have uh, fallen in your sight. And we beg of you that kindly have mercy upon us and reach us to our needs and take glory unto thyself. पिता, हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम आपके सामने अयोग्य हो जाते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि आप उस अनुग्रह के द्वारा हमें संभाल लीजिएगा और हमें सहायता कीजिएगा। If you begin to measure us according to your standards, we know that none of us can be present at your feet. और पिता, हम जानते हैं कि अगर आप अपने मापदंड में हमें तौलें तो हम में से कोई भी आपके चरणों के पास खड़े होने के योग्य ना होगा। Have mercy upon us, speak to us, for we offer this prayer with thanksgiving in the most blessed and highly exalted name, Lord and Savior Jesus Christ. और पिता, हम आपके चरणों में आकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता और महान और ऊंचे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. आमीन। Okay, let me share my PPT. Okay, so in the book of Acts, we have seen that important, very, very important truth in the whole book of Acts is Acts chapter 1, verse 8. और पूरे प्रेरितों के काम के अध्ययन में हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई को देखते हैं और वो है प्रेरितों के काम 1 का 8। See, the whole book of Acts hangs on this one verse that you shall be my witnesses. और प्रेरितों के काम का जो पूरा अध्याय है वो इस एक वचन पर आधारित है जहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। So we have seen that it's also called the Great Commission. और हमने इसे देखा था कि इसे महान आज्ञा भी कहते हैं। So that Great Commission was first executed at Jerusalem and Judea from Acts chapter 1 to 7. And later, Acts chapter 8, we found that the Great Commission was executed in Samaria. And then it was extended to remote parts of the world from Acts chapter 9 to Acts chapter 28. और हमने देखा था कि जो महान आज्ञा है वो यरूशलेम और यहूदिया में सबसे पहले पूरा किया चेलों ने, एक प्रेरितों के काम 1 से 7 अध्याय में। उसके बाद प्रेरितों के काम 8 में इसको उन्होंने सामरिया में पूरा किया। और इस महान आज्ञा को तीसरे भाग में प्रेरितों के काम 9 से लेकर 28 के बीच में पृथ्वी के छोर तक उन्होंने पूरा किया। We also have seen uh, that book of Acts is not concluded, and we are also included in the Acts of the Apostles, although we are not apostles, but we are disciples of the Lord Jesus Christ. और हमने देखा कि प्रेरितों का काम जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, परंतु हम भी उसमें शामिल हैं। हम प्रेरित तो नहीं हैं, परंतु हम प्रभु के चेले हैं और उसके इस रूप में हम इस सेवा में शामिल हैं। So their acts
are the model for us so that we should follow in their footsteps. और प्रेरितों ने जो काम किया है, जो परमेश्वर की सेवा की है, वो हमारे सामने उन्होंने एक आदर्श को रखा है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। Their lives were so powerful because they were saying that we are the witnesses unto the Lord Jesus Christ and his power of resurrection. और प्रेरित लोग बहुत सामर्थी थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं और उसके पुनरुत्थान के गवाह हैं। So, in the previous Bible study, we have seen the first missionary journey of Apostle Paul, and that is covered in the book of Acts, chapter 13 and chapter 14. और हमने देखा था कि जो पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा है, वो प्रेरितों के काम अध्याय 13 और 14 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। So, in that missionary journey, Apostle Paul and Barnabas and John the Mark were present. और इस पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा में उनके साथ बरनबास और यूहन्ना जो मरकुस कहलाते हैं उनके साथ थे। So, the parent church sent by the sent the apostles were from the Antioch church of Syria. और जो सीरिया में जो अंताकिया की कलीसिया है, यही वो जो एक मुख्य कलीसिया है जहां से इन मिशनरियों को भेजा गया था। So, in every local church, there ought to be few missionaries, those who are sent by the local church and reach the uttermost parts of the world. इसीलिए स्थानीय कलीसियाओं से ये बात होनी चाहिए कि स्थानीय कलीसियाओं से मिशनरी और सेवक भेजे जाने चाहिए जो पृथ्वी के छोर तक जाकर गवाह दे सकें। It is the business of the local church to bless the world. और ये स्थानीय कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो पूरे संसार के लिए आशीष का कारण बने। In the Gospels, the church is represented as a house set on the hill, so that like a powerhouse that gives the light to the whole city. और हमने देखा था कि जो चर्च होता है वो एक ऐसे घर के समान होता है जो पहाड़ पर है, और जिससे जगत के लोगों को, संसार के बाकी लोगों को ज्योति मिलता है। So the church leaders must be concerned about the missions, about the evangelism. As we keep praying, the leaders keep praying, and God will guide them and where they should go and whom should be sent. And all the details are there in the scripture. We have to simply follow their model. और हमें प्रेरितों की जो कार्य किया है उसको हम उदादर्श के रूप में पालन करना चाहिए, और इसीलिए चर्च के जो लीडर्स हैं वो मिशन के प्रति बहुत ही गंभीर होना चाहिए और सुसमाचार सेवा के लिए उनको गंभीरता होनी चाहिए, ताकि वो प्रार्थना करें और उसके द्वारा परमेश्वर उन्हें अगुवाई करें कि कहाँ भेजना है, किसे भेजना है, जो कि वचन हमें सिखाता है। We have seen in the previous Bible study from Acts chapter 13, verses 1 and 2. I would like to remind you once again, because this is very, very important, every one of us to note it categorically. और हमने जो और पहले वचन देखा था उसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उसको फिर से कैटेगरी में बांट के हमने देखा, तो उसको उस वचन को ध्यान देंगे। I request every church leader to make a serious note of it. और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक चर्च के लीडर्स जो हैं वो बड़ी गंभीरता से इसे समझें। I'm reading Acts chapter 13, verses 1 and 2. Now there were at Antioch in the church that was there prophets and teachers, Barnabas and Simeon, who was called Niger, and Lysias of Cyrene, and Manaen, who had been brought up with the Herod the Tetrarch and Saul. While they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 1 और 2 में लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरैनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। और जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे
तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। In the previous week, we could not have Bible study because I was told that Brother Anil Khare and some of the servants of God are busy with the fasting and prayer for about 7 days. और पिछले हफ्ते हमारा बाइबल अध्ययन नहीं हो पाया था। मैंने उसका कारण बताया था कि जो अनिल भाई हैं और बाकी उनके साथ विश्वासी भाई जो 7 दिन की उपवास प्रार्थना में हैं। I was very happy to hear that because these days in many churches they have forgotten to do the fasting prayer. और ये मैं बहुत खुश हुआ ये सुनकर, क्योंकि आज की कलीसिया में बहुत लोग उपवास प्रार्थना को भूल गए हैं। When church is praying with fasting, it is a crystal clear clarion call saying that there is some kind of urgency and there is some kind of burden which has to be unloaded at the feet of the Lord Jesus Christ. और जब हम उपवास से प्रार्थना करते हैं तो हमें स्पष्ट रीति से प्रभु की बुलाहट दिखाई देती है, और उसका जो बोझ है इस संसार में उसके सेवा का, वो हमें स्पष्ट रीति से दिखता है। Some people think that ordinary prayer will not have big effect. Only when we do with fasting and prayer, the effect of prayer will increase. और कुछ लोग कहते हैं कि साधारण प्रार्थना जो है प्रभावशाली नहीं होती है, परंतु उपवास और प्रार्थना के साथ जब हम बैठते हैं वो हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाती है। I'm sorry to say that our fasting will not make any difference when we pray. Our prayer is prayer. Just because we fast and pray does not mean to say that the power will be increased in prayer. और कई बार हमारे उपवास जो है में सामर्थ्य नहीं होती है, और कई बार हम अपने उपवास के साथ में प्रार्थना भी करते हैं और सोचते हैं कि उपवास से प्रार्थना में ताकत आ जाती है, और ऐसा कई बार नहीं भी होता है। I'm very sorry to say that many people talk about saying that, oh, there is awesome power in the prayer and prayer is powerful. I'm sorry, prayer is not powerful. God who answers our prayer is powerful. और कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत सामर्थी प्रार्थना थी, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य थी, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होती है, परंतु जिन प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देते हैं वो सामर्थी होती है। We fast and pray, that is an expression of the deep burden and deep concern. That's how I take it. और उपवास और प्रार्थना जो जिसका अर्थ मैं समझता हूँ कि ये अपनी बोझ और जिम्मेदारी को एक दिखाने का तरीका है। Let me explain you like this. मैं आपको ऐसे इसे समझा सकता हूँ। What do you mean by starving? और आप उपवास या भूखे रहने से क्या समझते हैं? Starving means you are hungry, there is no food. If food is there, you are willing to eat. और आप जानते हो कि भूखे रहने का मतलब है कि वहाँ भोजन तो है, लेकिन आप उसे खा नहीं रहे हैं, और हो सकता है वहाँ आपको भूख लगे। Fasting means you are hungry, food is available, but still your heart is filled with such burden that you are not willing to eat, but you want to spend some time in prayer, unloading all your burden at the feet of the Lord. और उपवास क्या होता है प्रियो? यहाँ भी हम भूखे रहते हैं, लेकिन इस भूख में हमारे हृदय में एक बोझ होता है कि वहाँ हम भोजन ना करके परे रह के प्रार्थना का समय बिताएंगे और वो कुछ सुन रहे बोझ हैं। को हम अपने परमेश्वर के सामने रखेंगे। So, if you read Isaiah chapter 1, there the Lord very clearly says the difference between prayer which is acceptable and prayer with fasting. And, how the Lord very clearly explains in Isaiah chapter 1. और यशायाह की किताब 1 अध्याय में आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रार्थना किस प्रकार होती है, कितने प्रकार की, उसे भी बताया गया है, और उपवास कैसे करना चाहिए और उपवास के साथ प्रार्थना कैसे परमेश्वर ग्रहण करते हैं वो भी बताया गया है। Here, my point is not talking about fasting and prayer. My point is, are the leaders of the church listening to what God is trying to say? और यहाँ मेरा जो विषय है वो प्रार्थना और उपवास के बारे में सिखाना नहीं है, परंतु मैं सिखाना चाहता हूँ कि आज जो लीडर हैं क्या वो परमेश्वर की बात और उसकी वाणी को सुन पा रहे हैं। At the church of Antioch of Syria, the leadership were praying
with fasting, and the Lord spoke to them, saying that separate Paul and Barnabas for the purpose for which I have selected them. और यहाँ देखेंगे प्रियो की जो अंताकिया की जो कलीसिया है, वहाँ के जो अगुवे हैं, लीडर्स हैं, वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा कि मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। And scholars say that the first missionary journey was around AD 45 to 48, and the mission field was Cyprus in Asia Minor. The distance traveled was about 1400 kilometers approximately. Miles, और not kilometers, sorry. 1400 miles approximately. और जो पहली मिशनरी यात्रा के बारे में जो स्कॉलर्स बताते हैं कि समय काल लगभग एडी 45 से 48 के बीच में था। और इस यात्रा में बरनबास, यूहन्ना, मरकुस उनके साथ थे। और जो साइप्रस और एशिया के माइनर इलाकों में वो इस मिशनरी यात्रा में गए थे। लगभग 1400 मील की यात्रा वो पूरा करके गए थे। Okay, let me remind you what we have seen in the previous study. Onward journey, Antioch and Seleucia, and they have visited synagogues, Perga, Pisidian church, Iconium, Lystra, and Derbe. और जाते वक्त जो उनकी पहली मिशनरी यात्रा में जो उन्होंने जो यात्रा की, उसमें पहले वो अंताकिया में थे। उसके बाद वहां से सिलूसिया गए और वहां पे आराधनालय में उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद पिरगा, पिसिदियन अंताकिया, इकोनियम, लिस्त्रा और होते हुए वो दिरबे पहुंचे। So please remember the route, the arrow marks are clearly mentioned here. So from Antioch to Seleucia and Salamis and Paphos, from there to Perga, Perga to Attalia, and from there to again Antioch of Pisidia, and from there to Iconium, from there to Derbe, and again the return journey. तो यहाँ पे जो मैप में हम देख सकते हैं प्रियो, जो तीर का निशान है वो मिशनरी यात्रा की पहली जाते समय की दिशा को दिखा रहा है कि उन्होंने इंताकिया से होते हुए, पिसदिया से होते हुए पिरगा गए। और पाम्पुस से होते हुए, पिरगा से होते हुए सिलूशिया, सिलूशिया के बाद आगे जाके वो जो ये पिसिडियम, एंटियोक, फिर इकोनियम, फिर लिस्त्रा होते हुए फिर वो दिरबे पहुंचे। And then the return journey, again Derbe, then Lystra, then Iconium, and then Pisidia, Antioch at Pisidia, and from there to Perga, Perga to Attalia, Attalia to Seleucia, Seleucia to Antioch. और पहली मिशनरी यात्रा में उनकी जो वापसी की यात्रा थी, उन्होंने दिरबे से शुरू किया। और दिरबे से लुस्त्रा, लुस्त्रा से इकोनियम, पिसिडियन अंताकिया, उसके बाद पिरगा, उसके बाद अतालिया और शिलूशिया होते हुए वापस वो अंताकिया को पहुंचे। So in the book of Acts chapter 15, we find the Jerusalem Council. और जो हम प्रेरितों के काम अध्याय 15 में देखेंगे तो उस समय हमें यरूशलेम में जो सभा हुई थी उसके बारे में हमें पता चलता है। We better say that this is the first Jerusalem Council in AD 50. और हम कह सकते हैं कि एडी 50 में होने वाली पहली यरूशलेम की सभा थी। Why I am saying first council, you'll be able to understand little later. और मैं इसे पहली सभा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को आप आगे समझ जाएंगे। Let me read verses 1 and 2. Some men came down from Judea and began teaching the brethren, unless you are circumcised according to the customs of Moses, you cannot be saved. And when Paul and Barnabas had great dissension and debate with them, the brethren determined that Paul and Barnabas and some others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders concerning this issue. और यहाँ प्रेरितों के काम 15 उसके 1-2 में लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीन
Yeah, verses 3 and 4. Therefore, being sent on their way by the church, they were passing through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles, and were bringing great joy to all the brethren. When they arrived at Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders, and they reported all that God had done with them. और 3 और 4 वचन में ऐसा लिखा है, अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए। और सब भाई बहुत आनंदित हुए जब वे यरूशलेम पहुंचे, तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। So, whenever there was a theological issue, the best thing is go to the mother church, call up all the leaders of the local church, let them gather together, come to the feet of the Lord, and study the scripture, understand the truth, what is there in the scripture, and then make a standard according to it. और प्रियो, जब भी व्यवस्था के विषय में कुछ चर्चा करने की बातें आती है, व्यवस्था के बारे में कुछ मनन करने की बात आती है, तो क्या लोग क्या करना चाहिए कि मातृ कलीसिया में जाकर, अपनी मुख्य कलीसिया में जाकर, वहाँ के लीडर्स के साथ, सभी लोगों के साथ बैठकर और वचन की जो अध्ययन करके सच्चाई की खोज करना चाहिए प्रार्थना के साथ में। There was one group, those who are very much conventional in their belief system. Some of the people came from Jerusalem and they disturbed the ministry, what Apostle Paul and Barnabas were doing. और यहाँ कुछ समूह थे जो यरूशलेम से आए थे और उनका विश्वास कुछ इस प्रकार का था कि वो पौलुस और उनके जो साथी की सेवा में वो रुकावट डाल रहे थे। What was that disturbance? और वो रुकावट क्या थी? Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. That's what we find in Acts chapter 15 and verse 1, the later part of it. और ये जो समूह यरूशलेम से आया था, उनके द्वारा रुकावट की विषय क्या थी, जो कि हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 1 वचन के दूसरे भाग में देखते हैं। उनका कहना था कि यदि तुम मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना नहीं हुआ है तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। And verse 2 says, Paul and Barnabas had great dissension and debate with them. And the brethren determined, saying that, no, it won't be sorted out. We better go to the parent church at Jerusalem. There meet with the leaders of the church and discuss about this matter and come out with the best solution. और दूसरे वचन में हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ इस विषय पर। और पौलुस और बरनबास का बहुत ही वाद विवाद हुआ इस विषय पर। तो लोगों ने ठहराया कि कुछ व्यक्तियों को मुख्य और मातृ कलीसिया में भेजना चाहिए ताकि वो यरूशलेम को जाएं और वहाँ के प्राचीनों के पास और लीडर्स के पास चर्चा करके इस विषय का कुछ उपाय निकालें। So we find that in the Jerusalem Council, verses 16 to 11, Apostle Peter gave his version, how the Lord led him, the importance of the circumcision, how the Lord guided him to go to Gentiles, in the chapter 10 to Cornelius family, and how the Lord shown him the vision, saying that God is not impartial, God is impartial. So in the local church, not only Jews, but also Gentiles are together as the local church is formed by the Lord. और हम देखते हैं यहाँ प्रेरितों के काम अध्याय 6 से लेकर आगे 16 तक के वचनों में पतरस भी वहाँ प्राचीन कलीसिया से खड़ा हुआ और उन्होंने पूरी अपनी सेवकाई के विषय में समझाया और जो सुसमाचार अन्य जातियों को कैसे मिला उस घटना को बताया, किस प्रकार वो कुरलियुस के परिवार में जाके सेवा की, उन सारे विषयों को बताया और उन सारी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को बताकर उन्होंने कोशिश किया कि इस जो समस्या है इसका एक हल निकले। So Barnabas and Paul also added what the Lord has convicted them with regard to the circumcision and the importance of it.
और इसीलिए जो पतरस के द्वारा स्पष्टीकरण हुआ, और उसमें जो पौलुस और बरनबास की जो बहस हो रही थी, उसमें एक उपाय निकाला गया, एक फैसला निकला कि इस प्रकार वो खतना की उन्हें आवश्यकता ना होगी। And then James gave this sermon from verses 13 to 21. And the sermon of Jerusalem elders, we find it from 22 to 35. और उसके बाद हम देखते हैं कि 13 से लेकर जो आगे वचनों में याकूब जो है उन सब भाइयों को इस विषय के विषय में बताने लगे। और उसके बाद वहाँ के और प्राचीनों ने भी 20 और 21 वचन में वहाँ से बात किया। So we find verses 22nd to verse 29. It was the message of the conclusion of the elders of the local church at Jerusalem. और यरूशलेम में जो प्राचीनों की जो और लीडर्स की जो समूह थी, उन्होंने एक निर्णय निकाला जिसको 22 वचन से लेकर 29 वचन के बीच में हम देखते हैं। The summary of the message is verses 19 and to 21. I am reading it from NASB version. Therefore, it is my judgment that we do not trouble those who are turning to God from among the Gentiles, but that we write to them that they abstain from the things contaminated by idols, and from fornication, and from what is strangled, and from blood. For Moses from ancient generations has in every city those who preach him, since he is read in the synagogues every Sabbath. Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them to send to Antioch with Paul and Barnabas, Judas and Barsabas and Silas, leading them among the brethren. और यहाँ जो उनके जो चर्चा हुई उसके बाद एक सारांश उन्होंने निकाला जिसको हम 19 वचन से लेके 21 वचन तक देखते हैं। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और वह हर शब्द के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। So it is the responsibility of the parent church to sort out theological issues. और ये मातृ कलीसिया की मुख्य कलीसिया की जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्था के विषय में अगर कुछ सवाल आ जाए तो वो उन्हें स्पष्ट करे। There was a theological issue saying that all Gentiles must first become Jews through circumcision. After they becoming Jews, then only they can become Christians. That was the conviction by some of the people who came from Jerusalem who disturbed this ministry done by Paul and Barnabas. और पौलुस और जो बरनबास के द्वारा जो सेवा हो रही थी, उसमें रुकावट इस प्रकार आई कि कुछ लोग जो यरूशलेम से आए थे, उन्होंने व्यवस्था के विषय में सवाल उठा दिया, और व्यवस्था के विषय में उन्होंने ये कहा कि अन्य जाति लोगों को पहले खतना कर कर यहूदी बनना पड़ेगा, और यहूदी बनने के बाद ही वो उद्धार पा सकते हैं। So why I said this is the first church council at Jerusalem means we had many disturbances brought by many people, and there was theological confusion. So leaders were to decide what is the truth and what is not truth. और मैं यहाँ पर अब इनको पहली यरूशलेम की सभा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं और बातें जो आती थी, और समस्या के विषय में जो व्यवस्था के विषय में जो लोगों को संदेह होता था, उस विषय में इस प्रकार की सभा के द्वारा जो है एक समाधान निकाला गया था। It is called canonization. Canonization means how many books are considered as truth, the word of God written by God Himself. और कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैनोनाइजेशन का मतलब होता है कि वे सत्य पर आधारित पुस्तकें जिनका निर्माता परमेश्वर है, उन्हें जोड़ना। Canon means a scale, scale which measures according to the standard.
So which book is standard, which book is considered as Bible? There was lots of discussions and debate happened in the local church. और कहना का मतलब होता है स्केल, अर्थात एक मापदंड जिसके द्वारा ये मापा जाए कि कौन सी पुस्तक बाइबल का हिस्सा होगी या नहीं होगी। ये बहुत ही एक बड़े वाद विवाद का विषय था। So in our church fathers, they had many councils where they gathered together, and they fasted and prayed, they discussed, and they sorted out, because there were so many books added with the name of apostles and with the name of famous theologians, and which brought lots of confusion. और जो हमारे चर्च के जो पिता जो थे, वो बार बार सभा करते थे, उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे और चर्चा करते थे आपस में कि कौन सी पुस्तक जो है वो सत्य पर आधारित है, और अन्य पुस्तकें जो प्रेरितों ने और जो थियोलॉजियंस ने लिख दी थी वो किस प्रकार अलग रहेगी बाइबल से, इस बात की वो चर्चा करते थे। I have I have discussed these matters in detail when I have presented the doctrine of the Bible, bibliology, much before, maybe some 4 years back. I don't know how many of you are aware of it. I don't know how many of you know about it. और ये जो इन बातों की चर्चा मैंने लगभग 4 साल पहले जब बिबिलियोलॉजी हमने पढ़ी थी, उस समय मैंने इस बात की चर्चा अच्छे से की थी। आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद उस समय इसको अध्ययन किए होंगे। So there were also many false teachers came up with many theological debates. और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गलत शिक्षक भी हुए हैं संसार में, जो व्यवस्था के विषय में बहुत वाद विवाद को लेकर आए। There were many questions about deity of the Lord Jesus Christ. और बहुत सारे लोगों ने तो प्रभु यीशु मसीह के देवत्व पर भी सवाल उठाए। There were many questions about the deity of the Holy Spirit. बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के देवत्व पर सवाल उठाए। And there were many challenges. What should be practiced in the local church? What should not be practiced in the local church? और बहुत सारी चुनौती लोगों के जीवन में आई कि स्थानीय कलीसिया में किन चीजों का पालन किया जाए और नहीं किया जाए। So all these things were discussed in the local church councils, and church fathers, those who are the great servants of God, the men of theology, they gathered together, they fasted and prayed, and they discussed, they deliberated all their understanding, and they came out with a beautiful outcome. और जो हमारी स्थानीय कलीसिया थी, चर्च थे, और जो हमारे पिता थे, उन्होंने सभा रखी और बार बार सभा करके उन्होंने व्यवस्था की जो ज्ञाता होते हैं उनको इकट्ठा किया और उपवास किया, प्रार्थना किया, और इन बहुत सारी चर्चाओं के बाद वो एक नतीजे पे निकले। The burden which the Lord gave me to have these Bible studies, this is the main reason. These days, there are lots of false teaching is ministered in the local churches, whereby churches are not being built properly, and lots of confusion existing in the local churches. और आज मेरे जो है बाइबल अध्ययन का एक और कारण था कि गलत शिक्षक जो हैं इस संसार में बहुत पाए जाते हैं, और आज स्थानीय कलीसिया में भी हम देखते हैं कि कई लोग सही बात को नहीं सीख पाते हैं, सही विषय पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें शंका में डाल देते हैं। I don't know how many of you are aware of it. I have already taught at least 7 major doctrines in the beginning. और जैसा आप में से कितने लोग हैं जो जान रहे होंगे कि मैंने आपको मुख्य जो 7 जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। And then I started teaching, all 66 books. We have completed the Old Testament, and we are now studying the book of Acts. और उसी क्रम में हमने आगे पूरे 66 पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने पुराने नियम को समाप्त किया और उसके बाद हम नए नियम में हम प्रेरितों के काम तक पहुंचे हैं। So the word of God must be preached as it is, without addition or without deletion. और जो परमेश्वर का वचन है वो जैसा है वैसा ही प्रचार होना चाहिए, ना तो उसमें से हमें कुछ घटाना है ना बढ़ाना है। There are two words used technically.
और दो शब्द हैं जिसे ज्यादातर हम तकनीकी रूप से उपयोग करते हैं। One is exegesis and the other is eisegesis. और पहला शब्द है एक्सोजेसिस और दूसरा है आइसीजेसिस। Exegesis means what the Bible says as it is, I should present to you without any mixture, without any deletion. और एक्सोजेसिस का मतलब होता है कि मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ सिखाऊं जो कि बिना मिलावट के और बिना उसमें किसी और चीज को शामिल किए होगा। Eisegesis means I want to say something. I will search the portions of the scripture and I will try to fit the text according to my mindset. I will speak, but I speak the scripture as if God is speaking. In fact, that is my speaking. It is in fact my desires and my passions, my spirituality, not the Bible's. और आईसीजेसिस का क्या मतलब होता है प्रियो कि मान लीजिए कि हमें कुछ बातें कहनी है और मैं जो बातें कहना चाहता हूँ उसको सार्थक करने के लिए मैं वचन के कुछ टेक्स्ट को और संदर्भ को उठाता हूँ और मेरे मन के ज्ञान के अनुसार मैं उस वचन को व्यवस्थित करके सामने वाले के प्रचार करता हूँ, जबकि लोगों को लगेगा कि ये परमेश्वर का वो क्या कह रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। वो मेरे विचार होते हैं और मेरे मन की जो है कही हुई एक जो ज्ञान होता है। I love to repeat those important doctrines, God willing, maybe after completion of this revelation. But here in the book of Acts, chapter 15, the elders at Jerusalem, they dealt at length this theological issue and properly sorted out. और प्रियो, प्रभु ने चाहा तो इस अध्ययन के बाद मैं आपको कुछ सिद्धांत और बताऊंगा इस प्रकाशन को खत्म सीखने के बाद। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यरूशलेम के लीडर्स हैं वो किस प्रकार व्यवस्था के विषय में जो सवाल आया है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने सारे वचनों का अध्ययन करके प्रार्थना के साथ में उसका एक हल निकाला। And then, chapter 15, verses 36 to end, we find the preparation for the second missionary journey. और प्रेरितों के काम अध्याय 15 उसका 36 से लेकर अंत तक हम देखते हैं कि दूसरी मिशनरी यात्रा की तैयारी उन्होंने की। I am reading from verse 36 onwards. After some days, Paul said to Barnabas, let us return and visit the brethren in every city in which we proclaim the word of the Lord and see how they are. Barnabas wanted to take John, called Mark, along with them also, but Paul kept insisting that they should not take him along, who had deserted them in Pamphylia and had not gone with them to the work. And there occurred such a sharp disagreement that they separated from one another. And Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul chose Silas and left behind, committed by the brethren to the grace of the Lord. And he was traveling through Syria and Cilicia, strengthening the churches. और प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 36 से लेकर 41 तक लिखा है। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वह कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंपुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम और उनके साथ न गया, ये साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। So here Paul did not want to take Mark along with him in the second missionary journey. और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पौलुस है अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में मरकुस को साथ ले जाना नहीं चाह रहा है। But Barnabas said, no, we will take John the Mark. परंतु यहाँ देखते हैं कि बरनबास ने कहा कि नहीं, हम मरकुस को अपने साथ लेके जाएंगे। This John Mark is son of sister of Barnabas. Barnabas' sister's son is Mark. और ये जो यूहन्ना जो मरकुस कहलाता है ये वास्तव में बरनबास की बहन का बेटा है। We find it in Acts chapter 12.
जो बात हमें प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पता चलता है। In the house of John Mark, they were praying when Apostle Peter was in the jail, and Apostle Peter came and knocked the door of John Mark. I think you remember when we have studied in our previous Bible study. और प्रेरितों के काम अध्याय 12 में जब पतरस जेल में था, वहां से निकलने के बाद जब वो छूटा तो वो इसी यूहन्ना जो मरकुस कहलाया था इन्हीं के घर में आया, और वे जो जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। It is true that John Mark ditched and went away, and for that reason, Paul is not happy to take him again. और यहाँ पे है कि यूहन्ना मरकुस जो था वो बीच में पौलुस को छोड़कर चला गया था अचानक से, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा साथ लेने के लिए पसंद नहीं किया। Here, the debate was so sharp that they were separated. और यहाँ पे वाद विवाद उनका बहुत गहरा से हुआ, इस इतने वाद विवाद हुआ कि एक दूसरे से अलग हो गए। In fact, it is Barnabas is the one who encouraged Paul, who took him to Antioch, and they were there together for 2 years. और ये वास्तव में बरनबास ही था जिसने पौलुस को वापस लेकर आया था और अंताकिया में लेकर आया था, और वहां उनके साथ वो 2 वर्ष तक था। Believers in Jerusalem were not willing to receive Apostle Paul because he was so furious and he was fighting against the Lord. And, they couldn't believe him, his conversion. और ये जो पौलुस है, इसके प्रति लोग डरे हुए थे, यरूशलेम में जो इतने लोग थे वो डरे हुए थे, और वो जान रहे थे कि ये बहुत ही विरोधी किस्म का था जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, इसलिए लोग उसे अपनाने से डर रहे थे। Although Barnabas is so senior to Apostle Paul, but here we find the difference of opinion is so strong that they were separated. और यहाँ जबकि बरनबास जो है वो देखा जाए तो पौलुस की तुलना में वो एक सीनियर व्यक्ति है, वरिष्ठ हैं ज्ञान में, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि इनका वाद विवाद इतना ज्यादा हुआ कि दोनों को अलग होना पड़ा। There are two schools of thought in this context. और यहाँ पे 2 प्रकार की विचारधारा इसके लिए बताई जाती है। Few scholars say that what Barnabas did was right, कुछ जो स्कॉलर हैं वो बताते हैं कि जो बरनबास ने किया वो सही था, and few scholars says that Barnabas did was wrong. और कुछ स्कॉलर कहते हैं कि बरनबास ने जो किया वो गलत था। It is because there is a wonderful verse is wonderful discussion is found in verse 40. Paul chose Silas and left being committed by the brethren to the grace of the Lord. और यहाँ पे चर्चा हुई, उसके बाद एक निर्णय लिया गया जो 40 वचन में लिखा है, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। So this verse 40 says that even the local church people of Antioch, of the local church, they supported Paul but not Barnabas, because it is written saying that being committed by the brethren. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंताकिया की कलीसिया के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने पौलुस को पसंद किया और पौलुस के काम की सराहना की और उसको सही ठहराया, लेकिन बरनबास जो है इस बात को उन्होंने सही नहीं कहा। And secondly, it was also written in verse 40 that committed to the grace of the Lord. और यहाँ पे जो 40 वचन में जो पहली बात लिखा है कि वहाँ के भाइयों ने उन्हें मिलकर उनका सहयोग किया और उनको साथ दिया, और दूसरा बात लिखा है वो अनुग्रह में सौंपे गए। So, basing on this verse, some theologians find fault with Barnabas, saying that Barnabas should have not done like that. और 40 वचन को देखकर कुछ बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि ये सही हुआ, परंतु जो बरनबास ने किया वो सही नहीं था। But we don't know exactly who is right, who is wrong, परंतु हम वास्तव में नहीं जानते कि किसने सही किया और किसने गलत किया, because Bible does not say that Barnabas was wrong and Paul was right. क्योंकि बाइबल इस वचन को नहीं बताती कि बरनबास का निर्णय सही था और पौलुस का गलत था, ऐसा नहीं लिखा है। But we don't find Barnabas hereafter. परंतु हम देखते हैं कि इस वचन के बाद में बरनबास का वर्णन हम नहीं देखते हैं। But the beauty is Paul wanted same John Mark again back into his ministry little later. परंतु हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद पौलुस ने फिर से इस सेवा में यूहन्ना जो मरकुस कहलाता है उसकी वापसी करने का विचार किया। I will remind you when we discuss about the epistles.
और मैं आपको याद दिला दूं, जब हमने प्रेरितों के बारे में अध्ययन किया था, What I believe personally, it's my personal understanding. What I believe is we need both Pauls and Barnabases. और ये मैं अपनी व्यक्तिगत समझ से आपको बता रहा हूँ कि हमें बरनबास और पौलुस दोनों की आवश्यकता है। So if you keep discarding people because of their unfaithfulness, I think a church will be empty and nobody can forward, because if you keep finding fault, who can stand the standard of the scriptures? और प्रियो, अगर हम लोगों की अविश्वास योग्यता के कारण उन्हें हम छोड़ते जाएं तो कलीसिया पूरी खाली हो जाएगी, क्योंकि लोगों में कुछ न कुछ गलतियां होती है। अगर हम उन गलतियों को पकड़ेंगे तो कौन है जो परमेश्वर के सामने और कलीसिया के सामने खड़ा हो पाएगा। I'm not trying to say that discipline is wrong. I'm not saying that maintaining standards is wrong. I'm not saying that do the best what you can. But what I'm saying is we need to encourage marks. There are many marks. If we keep on neglecting marks, if keep on denying marks, where do they go? और हम इस बात को समझना है प्रियो कि अनुशासन गलत नहीं है, अनुशासन अच्छी बात है, और जो अच्छा है उसको हम समझना है। परंतु मरकुस जैसे भाई लोग हैं जिनसे कभी गलती हो जाती है, उनको हम छोड़ना नहीं है, उनका इनकार नहीं करना है, परंतु उन्हें भी हम सहयोग करना है। The very meaning of the name of Barnabas is encourager. और बरनबास का जो नाम का अर्थ ही है, हम जानते हैं उसके बरनबास के नाम का अर्थ है एक उत्साहित करने वाला व्यक्ति। Do we have people like Barnabas in our churches? और क्या प्रियो, आज हमारे स्थानीय कलीसिया में बरनबास जैसे लोग हैं क्या? Are you a person like Barnabas who can encourage backsliders, speak to them, bring them back to the fellowship, bring them back to the fold to serve the Lord? और आज प्रियो, क्या आपका स्वभाव भी बरनबास जैसा है, जो कि बैकस्लाइड हुए लोगों को, प्रभु की सेवा छोड़ के दूर गए लोगों को वापस कलीसिया में लाके उत्साहित करता था? Barnabas' heart is a fantastic. I love him. We definitely need to pray that there must be few leaders like Barnabas who find the sheep which was lost. और प्रियो, वास्तव में बरनबास के हृदय को मैं पसंद करता हूँ, और वास्तव में ऐसे हमारे कुछ लीडर्स इस दुनिया में होने चाहिए जो खोई हुई भेड़ को वापस लेकर आए। Yes, we also need people like Paul and Silas. और ये भी जरूरी है कि हमको पौलुस और सिलास जैसे लोगों की भी जरूरत है। We appreciate them because they maintain standards. और पौलुस और सिलास की भी हम प्रशंसा करते हैं, इनकी भी हमें जरूरत है, क्योंकि इन्होंने एक उचित मापदंड को रखा है। They were one with the local church. They were one with the grace of the Lord. और इन्होंने स्थानीय कलीसिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही परमेश्वर के अनुग्रह के साथ भी जुड़े हुए हैं। I believe sometimes, God brings differences of opinion, but we need not separate, but we can peacefully do whatever the ministry God has given to us. और प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ये सब विषय वाद विवाद के आ जाते हैं, लेकिन हमें अलग नहीं होना है और परमेश्वर की दी हुई सेवा को साथ मिलकर करना है। I have been serving the Lord for about 40 years. I have seen many instances, and I have certainly learned many precious lessons. That is why I am saying like this. और मैंने भी 40 साल की सेवा की है, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को मैंने सीखा है। If you were to consult me 20 years back, I would have said, get out, get lost these Barnabas. Let's not bother about Barnabas. Let's follow Paul. Barnabas did was wrong. और आज से 20 साल पहले अगर आप मुझसे मिलते तो हो सकता है मैं यही कहता कि छोड़ दो बरनबास को, बरनबास जैसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है, हमें पौलुस चाहिए। So, having been walking with God, I have learned certain patience. I have learned certain flexibilities, and I have certain precious lessons. Now, I don't want to lose anyone whom the Lord loves dearly. और परमेश्वर के साथ चलते चलते मैंने सीखा है, ये महत्वपूर्ण अध्याय जो है, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हम किसी को भी नहीं खोना है, क्योंकि परमेश्वर सबको प्रेम करता है। Jonah rebelled against God, but the Lord brought him back. योना ने परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहा, उसे छोड़ के दूसरे राह पे चला गया, लेकिन परमेश्वर ने योना को वापस लाया। Even if you can share your own testimony, I'm sure that you also have many occasions wherein you also fell down, you also backslided, and the Lord cared you so much, and the Lord brought you back.
और खुद की भी हमारी गवाही हो सकती है प्रियो, कि हम भी कभी गिरे होंगे, बैकस्लाइडर हो गए होंगे, और परमेश्वर ने फिर से दया करके हमें वापस लाया होगा। I'm not saying that compromise the standards. I'm not saying that, make a big issue about these separating matters. और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी जो मापदंड है उससे आप समझौता करें, या जो जो अलग होने वाला विषय है इसको नज़रअंदाज करें। Learn to strike balance. Look at the situation the way how God looks at. और इन सब बातों में संतुलन बनाने की कोशिश करें, और परमेश्वर की ओर देखें कि वो कैसे कार्य करता है। So then 16th, 17th, and 18th chapter of Acts, book of Acts, we find Paul's second missionary journey. और 16, 17 और 18 अध्याय में हम पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा को देखते हैं। So the companions are Silas, Timothy, Luke, Aquila, and Priscilla. और इस दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ थिलास, तिमुथियुस, लूका, अक्विला और प्रिस्किल्ला थे। Aquila, Priscilla joined only at Corinth. और अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उनको कुरिन्थियों में ही उनके साथ भी केवल मिले थे। Whereas at Athens, Timothy and Luke, Silas were not there. प्लीज रिपीट अंकल। At Athens, only Paul was all alone and nobody was with him. और एथेंस में जब सेवा के लिए मिशनरी यात्रा में पौलुस गया था तो उसके साथ सिलास, तिमुथियुस, लूका कोई नहीं थे। So why I'm saying this, it all depends upon the place to place. Overall, these are all the people. Not, it does not mean to say that they were there from beginning to the end. और इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति उनके साथ शुरू से लेकर अंत तक हर जगह पे नहीं थे, परंतु वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियों में थे। So the mission field was Syria, Turkey, and Greece. और इनकी सेवा का जो इस मिशनरी यात्रा में क्षेत्र था वो सीरिया, तुर्की और ग्रीस में था। The duration was AD 50 to 52. Some say so 50 to 54. और ये जो मिशनरी यात्रा का कार्यकाल 50 से 52 एडी में था, और कुछ लोग इसे 50 से 54 एडी में था ऐसा कहते हैं। You know that they were sent by Antioch Church, Syria. और अब जानते हैं कि इस मिशनरी यात्रा के लिए भी उन्हें सीरिया के अंताकिया चर्च से भेजा गया था। So they started their journey they were there at Antioch. We find it in Acts chapter 15, verses 35 to 40. और उन्होंने अपनी यात्रा भी अंताकिया से शुरू की थी, जिसको हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 35 से 40 के बीच में देखते हैं। And then the journey started at 1541, and they came to Derbe and Lystra. We find it in 16th chapter, verses 1 to 5. और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से वे यात्रा जो है 15 के 41 वचन से हम देखते हैं कि वो किल्किया, सीरिया और किल्किया निकले, और उसके बाद दिरबे से होते हुए लिस्त्रा गए, जिसे हम प्रेरितों के काम 16 का 1 से 5 के बीच में देखते हैं। Please remember that this is the second time Apostle Paul visiting Derbe and Lystra. और याद रखिएगा कि ये जो दूसरी बार है कि जब पौलुस जो है दिरबे और लिस्त्रा में गए थे। In the first missionary journey, he has already visited there. और पहली मिशनरी यात्रा में भी वो दिरबे और लिस्त्रा को गए हुए थे। So Paul must have some sweet memories in his of his first missionary journey. और इसलिए पौलुस की याददाश्त में दिरबे और लिस्त्रा के लिए जो बातें थी वो उन्हें स्मरण में थी। Why I am saying is perhaps Paul had an eye on Timothy. प्लीज रिपीट अंकल। Paul must have had eye on Timothy. और मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पौलुस की जो आंखें थी वो तिमुथियुस पर लगी थी। If you read these first 5 verses, we understand that. I'm reading it for you. Chapter 16 of Book of Acts, verses 1 to 5. Paul came also to Derbe and Lystra, and a disciple was there named Timothy, the son of Jewish woman, who was a believer, but his father was a Greek, and he was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Paul wanted this man to go with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those parts, for they all knew that his father was Greek. Now, while they were passing through the cities, they were delivering the decrees which had been decided upon by the apostles and elders who were in Jerusalem for them to observe. So the churches were being strengthened in faith
and were increasing in number daily. प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसके 1 से 5 में लिखा है, फिर वह दिरबे अलुस्त्रा में भी गया। वहां तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा So, और please God, sorry. वह वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो लोग यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उनका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। Apostle Paul was a good mentor. और प्रेरित पौलुस जो है वो एक अच्छा गुरु है, अगुआ है। Paul, when he saw Timothy, he felt that he should encourage him. और पौलुस ने जब तिमुथियुस को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि तिमुथियुस को उत्साहित करना चाहिए। He must have sat with him for some time. He must have discussed with him some time. He must have found out, he must have found, his gifts, his talents, his skills, and his desires, his passions. And ultimately, Paul must have known that he is the man chosen for this missionary work. और तिमुथियुस के जीवन को देखकर पौलुस ने अच्छे से उन्हें विश्लेषण किया और उसके उसके साथ कभी कई बार चर्चा किया। और तिमुथियुस के जीवन की वरदान को उन्होंने खोजा और उसकी सेवा करने की इच्छा को भी जाना। और इन सारे कार्यों को देखकर पौलुस ने तिमुथियुस के लिए अच्छा काम किया। When we read Apostle Paul's letter to First Timothy and Second Timothy, then we will discuss more about Timothy. We understand that how Paul worked on Timothy and he raised him to be an amazing servant of God. और पहला तिमुथियुस और दूसरा तिमुथियुस की पत्री हम प्रेरित पौलुस के द्वारा जब लिखे हुए को पढ़ेंगे बाद में, तो हम जानेंगे कि किस प्रकार तिमुथियुस के लिए पौलुस ने कार्य किया और उसे परमेश्वर की सेवा के लिए योग्य बनाकर खड़ा किया। When Apostle Paul was about to be executed, maybe in the AD 67, maybe for about 10 to 15 years later, and he is the one who passed on his torch to Timothy, saying that he is the next line leadership. और एडी 67 में हम देखते हैं कि पौलुस का जो कि मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई। और ये घटना जो है इससे 10 साल 15 साल की बाद की घटना है। और उस समय तक पौलुस ने अगली पीढ़ी के एक महान सेवक के रूप में तिमुथियुस को तैयार किया। Paul calls him my son Timothy. Perhaps Timothy was born again through the ministry of Apostle Paul in the first missionary journey. और पौलुस जो है वो तिमुथियुस को मेरा पुत्र ऐसा करके क्यों कहते हैं, क्योंकि तिमुथियुस ने नया जन्म पाया था और वो भी पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा के दौरान। Apostle Paul had an amazing discernment, whom to encourage and how to train up a person to raise their, their spiritual stature so that they make raise to the expectation of the Lord. और पौलुस की जो दृष्टि बहुत ही अद्भुत थी, कि वो लोगों को परख पाते थे कि किसको उत्साहित करना है, कैसे उत्साहित करना है, कैसे उनके आत्मीय जीवन को बढ़ाना है और कैसे उनकी उन्नति करनी है। ये सारी बातों को पौलुस अच्छे से जानते थे। Uh, King David is my Old Testament hero. और दाऊद जो है हमारे पुराने नियम का हीरो है। And Apostle Paul is my New Testament hero. और पौलुस जो है वो एक प्रकार से नए नियम का हीरो है। I have taken lots of inspiration from the life and testimony of Apostle Paul. और मैंने पौलुस के जीवन को देखकर बहुत सारी जो है प्रभावित हुआ हूँ और उसे देख के मैं सीखा हूँ। Paul is a beautiful mentor. He worked on many people, not just preaching the gospel. He trained, he equipped, he prepared many people in his ministry. और पौलुस ने न केवल सुसमाचार प्रचार किया, परंतु वो एक अच्छे गुरु के रूप में काम किया और कई लोगों के जीवन में उसने काम किया और बहुत लोगों को तैयार किया और उनके जीवन में उन्हें योग्यता की ओर लेके आया। So when we read the epistles written by Apostle Paul, we understand more on these lines. और जब हम पत्रियां पढ़ेंगे तो पौलुस के द्वारा हम इन विशेष गुणों के बारे में और देख पाएंगे। There at Derbe and Lystra,
we understand the amazing testimony of Timothy. और प्रेरितों के काम 16 के 1 से 5 के बीच में हमने देखा कि दिरबे और लिस्त्रा में हम तिमुथियुस की अच्छी गवाही को देखते हैं। And verse 2 says, he was well spoken of by the brethren who were in Lystra and Iconium. और 2 वचन में लिखा है कि वह लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में सुनाम था। So no wonder Apostle Paul chosen this young man. He must have seen him a wonderful leader in the days to come. और कोई शक की बात नहीं थी कि इतने अच्छे गुण को जो पौलुस ने तिमुथियुस के जीवन में देखा था और देखा कि ये भविष्य में जरूर एक अच्छा सेवक बनेगा। If you are like Apostle Paul striving to preach gospel, do you have Timothy's? और प्रियो, जबकि आप पौलुस के समान अगर सेवा के लिए भूख और प्यास रखते हैं तो क्या आपके पास जो नए चेलों के रूप में तिमुथियुस है क्या? Look someone, those who are looking at you for some kind of help or guidance, equip them, train them, and lead them to Christ so that they may mature and they may become very good leaders in the days to come. और प्रियो, आप अपने जीवन में देखिए कि कौन आपकी ओर देख रहा है और किसे आप प्रशिक्षित कर सकते हैं, किसको आप मसीह की ओर ला सकते हैं और किसको आप सिद्ध कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में वो भी एक महान सेवक बने। Every believer should have a mentor. और हर विश्वासी को एक अच्छा गुरु होना चाहिए। There must be a balance of juniors and seniors. और जरूर एक पुराने अनुभवी लोगों में और नए लोगों में एक संतुलन होना चाहिए। You should have a mentor who is much senior to you, one who is well matured than you, so that you may consult at the time of confusion and confirm the truth and then adopt it. और हमारे पास भी एक गुरु होना चाहिए प्रियो, जो परिपक्व हो, सिद्ध हो, जिनके पास हम जा सकें अगर कभी भी हमारे जीवन में किसी सत्य के विषय में हमें जानने की इच्छा हो या हम कहीं शंका में हो, तो हम उसे स्पष्ट करने के लिए हमारे पास एक परिपक्व और ऐसा शिक्षित गुरु होना चाहिए। If you don't have any mentor, if you don't have any partner with whom you pray and share whole your heart and then take suggestions and counsels, however spiritual, however great spiritually equipped you are, you need a mentor. That is a must. प्रियो, अगर हमारा कोई गुरु नहीं है, अगर हमारा कोई अच्छा साथी नहीं है, जिसके पास हम जा सकें और अच्छे से सेवा की बातों को हम डिस्कस कर सकें, तो जरूर हम इस बात को समझें कि हमारा एक अच्छा मेंटर या गुरु जरूर होना चाहिए। I want to tell you, I have my own mentor. I consult my seniors. Whenever I get, two opinions, what to adopt, I don't take risk. I consult them, I share with them, and then say that, brother, what do you think? Is this okay? I'm getting this thought. Is this right? Is this wrong? Because although we are well equipped with the scriptures, but still we need to confirm because this is something to do with eternal risk. Please remember that. और प्रियो, मेरा भी गुरु हैं, मेरे भी कुछ गुरु हैं, वो सीनियर हैं और मैं भी उनसे सलाह लेता हूँ, ओपिनियन लेता हूँ जब मेरे जीवन में कोई विषय हमें समझ में नहीं आता है। हम जाते हैं, उनसे पूछते हैं, मिलते हैं और इन सब कार्यों के द्वारा हम किसी वचन पर अध्ययन करते हैं तो उसे हम कंफर्म करते हैं, क्योंकि वचन पे हमें कंफर्म इसलिए होना है क्योंकि ये अनंत काल तक एक न्याय का विषय रहेगा। I have my ministry partners, those who are much younger to me, although they are younger to me. So whenever I need to take decision, I confirm with them, I share with them. और मेरे साथ सेवा के जो साथी हैं वो लोग कई लोग जवान भी हैं, बहुत यंग लोग हैं और मैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ और उनके साथ भी चर्चा करके मैं किसी विषय को कंफर्म करता हूँ। I am not ashamed to learn from my juniors. और मुझे शर्म नहीं आती, कोई लज्जा की बात नहीं है कि हम अपने जूनियर से या नए लोगों से सीखें। I respect people of God, those who are well equipped, those who are well matured, those who are well balanced. और प्रियो, वे लोग जो सिद्ध हैं, वे लोग जो परिपक्व हैं और वे लोग जो संतुलित जीवन जीते हैं वो वास्तव में आदर के योग्य हैं। Do you have a mentor? क्या आपके पास आपका कोई गुरु है? And secondly, do you mentor somebody? और ये भी है कि क्या आप किसी के गुरु बनकर किसी को सिखाते हैं? When somebody is looking at you, when somebody willing to take your assistance, take your guidance, will you be like a father, will you be like a mother, and then receive them and mentor them softly,
like a mother, like a sister, like a brother, train them, equip them, prepare them for the future. और प्रियो, क्या आप किसी के लिए एक अच्छे गुरु बनते हैं? क्या आप किसी के लिए अच्छा गुरु या अगुआ बन रहे हैं? एक माता पिता के समान आप किसी को ग्रहण किए हुए हैं, किसी को बड़ी कोमलता के साथ आप सिखाते हैं, भाई बहन के समान। यही एक मेंटर का काम है, गुरु का काम है कि वो एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करें, उन्हें परिपक्व करें और उन्हें सिद्ध करके खड़ा करें। Verse 3 really raises so many questions. और ये जो तीसरा वचन है, बहुत सारे सवाल हमारे जिन में डालती है। Paul wanted this man to go with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those parts, for they all knew that his father was a Greek. और तीसरे वचन में ऐसा लिखा है कि पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। Just in the chapter 15, we have seen that how Apostle Paul was fighting with tooth and nail with the Judaizers. और हम देखें कि अभी प्रेरितों के काम 15 अध्याय में ही हमने देखा कि वहाँ यहूदियों से किस प्रकार इस विषय पे पौलुस ने बहुत वाद विवाद किया था। Why is it he's compromising like this? और यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने तीमुथियुस के विषय में यहाँ समझौता कर लिया। Even Galatians chapter 2 also, he confronted with Apostle Peter, when Peter stopped associating with the Jews because of the leaders who came from Jerusalem, and he confronted with him and gave a beautiful message there in Galatians chapter 2. और जबकि गलातियों की किताब अध्याय 2 में भी हम देखते हैं कि पौलुस ने किस प्रकार पतरस के विषय में बताया हुआ है कि किस प्रकार यरूशलेम से जो यहूदी आए थे उनके साथ जो उनके विषयों पर वाद विवाद हुआ था। There are certain difficult passages in the scriptures. और वहाँ कुछ वचनों को हम देखते हैं तो उसे समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। This is a difficult passage like that. और उन्हीं में से एक ये वचन है जिसे समझना थोड़ा कठिन है। So when he confronted with others because of this circumcision, the matter of circumcision, why he himself is taking Timothy circumcised and then using him for the ministry. और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पौलुस ने ही शुरू में खतना का विरोध किया था, लेकिन यहाँ तीमुथियुस का जब विषय आया तो उन्होंने उनका खतना होने के लिए भी उनको करवाया और उनको साथ में अपनी सेवा में लिया। It is difficult to make a general comment, but we can understand that there is a hint in the scriptures that for certain issues, certain times, God may allow to make certain changes. और ये सामान्य चर्चा का विषय तो है, लेकिन हम कुछ विषयों में देखते हैं कि परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम अपने विषयों में कुछ परिवर्तन कर सके। This is definitely little difficult passage. We can't take it granted that we will also do like that. और ये भी एक अलग वचन है और हम नहीं कह सकते कि हम भी इसी प्रकार पालन करें। And verse 6 says that from there, Derbe to Lystra, they came to Pyrgia, and via Pyrgia, and this is the Pyrgia. This is Lystra and Derbe. From here, this Pyrgia and Galatia, and they were traveling like this. So via Mysia and Bithynia and Troya, something happened in between here. और हम देखते हैं कि लुस्त्रा और दीबे से निकलने के बाद पौलुस जो है वो त्रोआस में जो फ्रूगिया नाम की जगह है, उसके बाद गलातिया प्रदेश में गए, उसके बाद बितूनिया से होते हुए वो त्रोआस को गए हैं और उसके बीच में कुछ घटना हुई है। We will understand when we read from verse 6 onwards. They passed through the Phrygian and Galilean region, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. और 6 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। Sometimes, it gives us shock. What is this? Holy Spirit only helps us or wants us, inspires us to preach the gospel. Why Holy Spirit is forbidding this there's a team to preach the gospel at Asia?
और हमें बड़ा आश्चर्य होता है ये देखकर कि पवित्र आत्मा तो सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए, उत्साहित करने के लिए सहायक है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। Does it mean to say that Holy Spirit has is partial? तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने यहाँ पर एक पक्षपात किया है? Does it mean to say that people at Asia do not need gospel? क्या इसका ये मतलब था कि एशिया के लोगों को सुसमाचार की जरूरत नहीं थी? No, that's not the idea. Later we understand that gospel came to Asia through somebody and through some other ways. ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में एशिया में किसी और के थ्रू वो सुसमाचार पहुंचा है और वहाँ लोग सुसमाचार को जाने हैं। In the very third missionary journey, when Apostle Paul was there at Ephesus for more than 3.5 years, then gospel spread all over Asia and Galatia. Hello? Hello? Actually, I miss your voice, uncle. Please repeat. Okay. So when Apostle Paul was there at Ephesus for about 3 to 3.5 years in his third missionary journey, then gospel came all over those places. और हम देखते हैं कि पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा में जब वो इफिसुस में लगभग 3 साढ़े 3 साल तक थे, तो इन सारे क्षेत्रों में ये सुसमाचार उनके द्वारा पहुंचा था। It does not mean to say that Holy Spirit forbade them not to preach gospel at Asia, not once for all, but at that point of time, there was some kind of emergency that gospel must reach at certain place. That's the idea. और यहाँ एक मुख्य जो समझने वाली बात वो ये है कि पवित्र आत्मा ने एशिया में हमेशा के लिए उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए मना नहीं किया, परंतु इस वक्त एक समय था जब वो पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में जाने से मना किया, क्योंकि इस समय पर कहीं और सुसमाचार की ज्यादा जरूरत थी। So, and then verse 7, after they came to Mysia, they were trying to go to Bithynia, and the Spirit of Jesus did not permit them. और 7 वचन में लिखा है, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। So they wanted to go and preach the gospel this area. और इसका यहाँ पे वो जो है बिथुनिया में जाकर वहां पे सुसमाचार सुनाना चाह रहे थे। Why again there is some kind of offense for them not to go in this direction? और फिर से हम यहाँ देख रहे हैं कि इस दिशा में जाने के लिए यहाँ पर उनको कुछ विरोध का सामना करना पड़ा। Please try to understand one fundamental truth here. और यहाँ पर एक आधारभूत सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। It is God who dictates us where to preach gospel, to whom we are to preach gospel, how we are to preach gospel, who should preach the gospel. और ये परमेश्वर है प्रियो, जो ये बात के निर्णय लेते हैं कि कौन प्रचार करेगा, किसे हम प्रचार करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे सुनाना है। God, according to his own will, he leads us and guides us, and who should preach where and when. और परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा से हमें अगुवाई करता है, हमें कहता है कि तुम यहाँ जाओ और इसे प्रचार करो। Here, Apostle Paul is helping us to understand how to know the guidance of the Holy Spirit. और यहाँ पे पौलुस के जीवन को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिली। And then we understand in verse 9, a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing and appealing to him and saying, come over to Macedonia and help us. When he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. और 9 और 10 वचन में लिखे, वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। Verses 11 and 12. So, putting out to sea from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the day following to Neapolis, and from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia, a Roman colony, and we were staying in this city for some days. और 11 और 12 वचन में इसलिए लिखा है, ऐसा लिखा है, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए
वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। So in the map on the slide, so from Troas to Sumatris, and from there to Neapolis to Philip. This is an important city in the province of Roman Empire. और हम देखते हैं कि पौलुस की इस मिशनरी यात्रा में वो किस प्रकार बिदुनिया होते हुए, त्रोआस से होते हुए वो नियापुलिस और फिलिपी पहुंचे हैं, जो कि मकिदुनिया प्रांत का और रोमियो का जो देश है उसका एक मुख्य नगर था। So this is the first time Apostle Paul going to that area, gospel going to that place. और ये पौलुस पहली बार उस क्षेत्र में गया था और पहली बार सुसमाचार उस क्षेत्र में जा रहा था। So does it mean to say that God visits us through the dreams these days also? और आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आज भी इसी प्रकार का दर्शन लोगों को देते हैं? I don't think so. और मुझे ऐसा नहीं लगता। But ultimately, God will help us to know where we have to go. And ultimately, it is God who opens our eyes and convicts us and gives us proper understanding. हाँ, इतना जरूर है कि परमेश्वर मदद करते हैं कि हम कहाँ जाएं, और हमारी आंखें खोलते हैं और हमें समझ देते हैं कि हम किस प्रकार की सेवा करें। I believe all relationships are God ordained relationship. और मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि जो जितना रिश्ता परमेश्वर बनाता है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ होता है। I don't know how a trigger comes up through some person or some situation. Ultimately, He guides because I have a number of experiences of that kind. और हमें ये नहीं पता कि किसके द्वारा कोई चीजें शुरू होती है, परंतु इतना जरूर है कि परमेश्वर ही है जो इन सारे विषयों में हमें गाइड करते हैं। So, there in the Philip, the first convert was Lydia. और फिलिपी क्षेत्र में जब वहां पहुंचे तो वो पहली स्त्री जिनका जीवन परिवर्तन हुआ वो लूदिया थी। And verses 14 and 15, a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple fabrics, a worshipper of God, was listening, and the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. And when she and her household had been baptized, she urged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she prevailed upon us. 14 और 15 वचन में लिखा है, लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। It is we who preach the gospel. It is the work of the Holy Spirit to convict the same truth of gospel in a particular person, and it is the ministry of the Holy Spirit to convert the people. और प्रियो, ये हम हैं जो प्रचार करते हैं, और ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो किसी व्यक्ति को कायल करते हैं और उस व्यक्ति को परिवर्तन करते हैं। Unfortunately, our Indians, our dear friends of our own countrymen, they have misunderstood saying that Christians are converting. Sorry, we cannot convert. It's God who converts. I can't convert my own children. I can't convert myself. Where is the point of converting others? और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत में और हमारे जितने मित्र हैं भारत में, वे ये समझते हैं कि लोग जो हैं, हम जो हैं, या क्रिश्चियन जो हैं वो किसी को परिवर्तन करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में परिवर्तन करने वाला किसी को वो परमेश्वर स्वयं है। हम किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम खुद को और खुद के बच्चों को भी परिवर्तन नहीं कर सकते। Let me very clearly specify the truth written in the scripture. That is we find in verse 14 and the last verse. The Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. और इस सच्चाई को हम देखते हैं जो कि यहाँ 14 वचन के अंतिम भागों में लिखा है कि प्रभु ने ही उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। This is conversion. और इसी को परिवर्तन कहते हैं। Let me repeat. Chapter 16 of book of Acts and verse 14, the last portion. The Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul.
और यहाँ 14 अध्याय के आखिरी बात वचनों 14 वचन के आखिरी भागों में लिखा है, प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। When we preach gospel concerning Jesus Christ, saying that Jesus died for you on the cross of Calvary, we have sinned against God. We should pay the price. But on our behalf, Jesus, being both God and man, as a sacrifice on the cross of Calvary, that's the truth we proclaim. और प्रियो, हम जब सुसमाचार की बात करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को वहाँ प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि हम सब पापों के बदले, हमारे अधर्मों के बदले कैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, और जबकि वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों था, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया ताकि हम सबको पापों से छुटकारा मिले। Jesus proved that he is God because he died and rose again victoriously on the third day, as he already prophesied. और यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है? क्योंकि वो अपनी भविष्यवाणी के अनुसार, जैसा उसने कहा था, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। And we tell the truth that whoever believes in Jesus Christ, their sins will be forgiven, they will be transformed. और हम ये बात समझाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा है, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह में पापों की क्षमा पाते हैं उनका जीवन परिवर्तन होता है। I'm sorry, Christian religion will not convert any person. I'm very sorry. और मैं आपको इस चीज को बता दूं कि क्रिश्चियन धर्म जो है वो किसी का जीवन नहीं बदलता है। Most of the Christians are there in Christian religion, they also need conversion. और बहुत सारे तो खुद क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्हें तो खुद ही परिवर्तन की जरूरत है। Christianity is not counted as a religion, Christianity is the way of the Lord. और क्रिश्चियनिटी को हम कभी भी एक धर्म के रूप में नहीं देखकर परमेश्वर के मार्ग के रूप में देखना सही है। What Bible say about conversion? और परिवर्तन के बारे में बाइबल क्या कहती है? A rogue will become saint. प्लीज प्लीज अंकल। A rogue, dirty rogue, wicked people become saints. That is conversion. और परिवर्तन क्या है कि जितने जो जो पापी हैं, डाकू हैं, ये जो महान पापी लोग संत बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। And Jesus Christ enters into our life. He becomes Savior. He becomes Lord. He converts my life from the sinful life to the saintly life. That is conversion. और हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं और वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमारे जीवन को परिवर्तन करके हमें पाप में संसार हृदय से हमारे जीवन को एक सेवक और संतों के समान स्वभाव में ले आते हैं, इसे परिवर्तन कहा जाता है। Because Bible says Jesus Christ is the creator, he is the sustainer, he is the savior, he is the judge. और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ही रचना सृष्टि करता है, वही सबको संभालने वाला है, और वही सबका उद्धार करता है, और वही न्यायी है। The Bible says that you are a sinner. If your sins are not forgiven, if you die in your sins, you will pay for your sins because God is a righteous and holy God. You will pay for your sins in the eternal hell. That's what Bible says. और बाइबल बताती है कि जो पापी होते हैं प्रियो, अगर उनको क्षमा ना मिले तो बिना क्षमा की हालत में वो लोग जो हैं उनका अगर न्याय हुआ, तो क्योंकि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, पवित्र है, वो उनका न्याय करेगा और वे अनंत काल के लिए दंड भोगने के लिए चले जाएंगे। So this truth is proclaimed to many people, but those who are converted because God opens their heart. और ये जो सच्चाई है ये लोगों को हम बताते हैं और कई लोगों को बताई जाती है, और वो परमेश्वर ही है जो लोगों के हृदय को खोलता है, फिर उनका परिवर्तन होता है। This is what Bible says. और यही बात है जो बाइबल बताती है। In any language, the same truth. और कोई भी भाषा में क्यों ना हो, परंतु वही सच्चाई बताई जाती है। Truth does not change. Only people from their own mother tongue, they say that. और सत्य का भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अलग अलग भाषा के लोग जो हैं इस सत्य को अपनी भाषा में बता पाते हैं। Because I am speaking to some of our friends at North Indian, that for that reason I am saying in English and brother is translating into Hindi. Otherwise, my mother tongue is Telugu and normally speaking in Telugu. और जैसे कि मैं उत्तर भारत के प्रिय लोगों को बात करने के लिए मैं
इंग्लिश में कह रहा हूँ, जैसे कि भाई उसे हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, परंतु मैं तेलुगु बोलने वाला व्यक्ति हूँ जो तेलुगु भाषा में लोगों से बात कर सकता हूँ। My dear friends, listen carefully. Whoever is listening, the same truth all over the world, language may change, content of the truth does not change. One God, one truth. That is what the word of God says, Bible says. और प्रियो ध्यान से सुनिए, सत्य जो है वो एक होता है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता है। और वही परमेश्वर जो एक है वो सत्य है। In verses 16 to 18, there was one slave girl filled with the evil spirits, troubling Apostle Paul and Barnabas and the team. और 16 से 18 वचन के बीच में जाएंगे तो वहाँ एक ऐसी स्त्री के बारे में लिखा है जो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जो कि पौलुस की सेवा में उन्हें परेशान कर रहे थे। It happened that as they were going to the place of prayer, a slave girl having spirit of divination met us, who was bringing her masters much profit by fortune telling. Following after Paul and us in the sense Luke also added here, she kept crying out, saying, these men are bond servants of the Most High God, who are proclaiming to you the way of salvation. She continued doing this for many days, but Paul was greatly annoyed and turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out at that very moment. और 16 से 18 वचन के बीच में लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। When Paul was preaching gospel, see the devil is also, adding witness to Apostle Paul and the team. और पौलुस जब यहाँ सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी वो दुष्ट आत्मा भी उसी उद्धार की मार्ग के बारे में बता रहा है। Devil knows the truth. और दुष्ट आत्माएं जो है, शैतान जो है वो सच को जानता है। Here we find a slave girl, verse 16, a slave girl having a spirit of divination, and she was enabling her master with much profit by fortune telling. और यहाँ पे लिखा है 16 वचन में कि एक दासी मिली जो भावी कहने वाली जिसकी आत्मा थी, और भावी कहने के कारण वो अपने स्वामियों के लिए कुछ कमा लाती थी। She was kept crying, saying that these men, means who? Paul and Silas and the team of second missionary journey are bond servants of the Most High God, who are proclaiming to you the way of salvation. और ये जो स्त्री थी ये पौलुस के और उसके पीछे चलने वाले लोगों को, और जो लोग उसके टीम था उसके लिए चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। Some of us may think, Array, it's a good idea, no? The devil is adding fuel to fire. Let it continue. और कई लोग सोचेंगे कि बढ़िया ही है, यहाँ पे दुष्ट आत्मा तो अच्छी बात बोल रहा है, चलो इसे बताने दो, ऐसा हम सोचेंगे। But Paul says, shut up. I don't need your recommendations. परंतु पौलुस ने यहाँ उसे चुप कराया और कहा कि हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। These days, if such things happen, we put garland and income and put them on the on the stage, give a mic, saying that you also tell. Then later we will tell. और कई बार ऐसा होता है आज के समय में, अगर ऐसा हो जाए प्रियो, तो हम प्रसिद्ध होने के लिए और पैसे के लिए ऐसे लोगों को फेमस करके हम लोगों को कहेंगे, हाँ आप कहो बताओ ऐसा। Please remember, never allow devil to join the team to preach the gospel. और ये बात याद रखिएगा प्रियो कि कभी भी शैतान को अपनी टीम में शामिल मत कीजिएगा कि वो आपके साथ मिलके सुसमाचार बताए। It is the devil who disrupts the evangelism. और ये शैतान ही है जो सुसमाचार की सेवा को बिगाड़ता है। There are many, many cults, many falsehood religions on the face of the earth. It is because devil tells truths, maybe some 10% or 20%, and remaining all falsehood, deviating the truth,
and misrepresenting the truth, ultimately separating from the living God. और प्रियो, इस संसार में बहुत सारे धोखेबाज लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, गलत शिक्षा देने वाले लोग हैं, और इन सब के जीवन में शैतान काम करता है। वो 20 से 25% तो वचन की बातें कहते हैं, लेकिन बाकी उनकी सारी बातें गलत होती है, जो लोगों को गलत प्रस्तुति देकर जीवते परमेश्वर से अलग कर देती है। I think my time is running out. I will better stop here. Maybe God willing, in the next study, we will continue. हमारा समय यहाँ पे आगे चला गया, इसलिए हम यहाँ रोकेंगे और हमारे बाइबल अध्ययन को आगे आने वाले दिनों में जारी रखेंगे। Hope God has been speaking to us. आशा करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बात किया है। And shall we close our eyes and make a commitment to the Lord, whatever we have learned, and we are accountable to respond. And may the Lord help us to obey and follow the truth for His glory and for His purpose. और आइए हम जो कुछ बातें सीखे हैं उसको लेकर हम प्रार्थना करें कि जो कुछ बातें हमने सीखी है उसके लिए हम समर्पित होंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए इसे उपयोग करेंगे। Shall we pray? आइए दुआ करें।